لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ محترم ناظرین و سامعین، جن آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک، ان کا ترجمہ یہ ہے: اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کو بشارت دے دیجئے۔ یہ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صابرین وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، وَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ان للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہماری برگشت اسی کی طرف ہے۔ جو اس منزل پر فائز ہوتے ہیں، جو صبر آنے پر، جو مصیبتیں آنے پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ان پر اللہ کا درود و سلام ہے۔ یہی ہستیاں ہیں وہ جن پر اللہ کی صلوات ہے اور اس کی رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے مطابق ہر شخص سے امتحان ہوگا، کیونکہ کہا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، اور جو ادبیات عرب سے آگاہی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس جملے کی کیا قیمت ہے۔ کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، تمہاری اولادوں کی قربانی سے، تمہارے مالوں کے نقصان سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں سے امتحان لیتا ہے، تو سب سے بڑا امتحان کس سے لیتا ہے؟ جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان بڑا ہوگا۔ ہر ایک سے اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو عزیزان گرامی، بڑے بڑے امتحان انبیاء کرام نے دیے، ہر نبی کا امتحان ہوا، جس کا جتنا مرتبہ بلند اتنا امتحان بلند، لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہ تمام امتحان دیے جو نبیوں نے فرداً دیے تھے۔ اور اس آیہ کریمہ کا اتم اور اکمل مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ جس نے ہر امتحان دیا۔ امام حسین نے خوف کا امتحان دیا، امام حسین نے بھوک کا امتحان دیا، امام حسین نے پیاس کا امتحان دیا، امام حسین نے اپنے عزیز و اقارب کا امتحان دیا، امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر
की कुर्बानी देकर इम्तहान दिया, इमाम हुसैन ने अली असगर की कुर्बानी देकर इम्तहान दिया, इमाम हुसैन ने अपना सर कटवा कर अल्लाह की बारगाह में इम्तहान दिया। अज़ीज़ान गिरामी, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम है, आज फर्जंदे रसूल का अरबाइन है, आज अली के नूर नज़र का अरबाइन है, आज ज़हरा के लख्त जिगर का चेहलम है, आज इमाम हसन के बरादर का चेहलम है, आज ज़ैनब कुबरा के भाई का अरबाइन है, आज चेहलम है उस हादी बरहक का जिसने आखिरी सांस तक दीन का पैगाम सुनाया, आज चेहलम है उस कारी कुरान का जिसने नो के नेज़ा पर भी तलावत कुरान की, आज चेहलम है उस मुहाफ़िज़े कुरान व काबा का जिसने हुर्मत काबा की खातिर हज को उम्रे से बदल दिया, आज चेहलम है उस पासबान शरीयत का जिसने अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर के लिए वतन छोड़ दिया, आज चेहलम है उस मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का जिसने 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त करके जहाद किया, आज चेहलम है उस इबादत शार का जिसने बरसते तीरों में नमाज अदा की, आज अरबाइन है उस साजद सुबहानी का जिसने ज़ेरे खंजर सितम सजदा किया, आज चेहलम है उस मसावात के लंबरदार का जिसने जौन के सर को अपने जानू पर रखा, आज अरबाइन है राकबे दोशे रसूल का कि जिसकी खातर मुरसल आज़म नाका बने, आज चेहलम है उस हाफ़िज़े फ़रूए असूल का कि जिसकी खातर ख़ातमुन नबीयीन ने अपने सजदे को तूल दिया, आज अरबाइन है उस मौलाए करीम का कि जिसने हुर की ख़ता को माफ़ करके उसको हकीकी हुर बना दिया, आज चेहलम है उस सैयद शुहदा का कि जिसके कटे हुए सर से कि जिसको नो के नेज़ा पर बुलंद किया था, सूरा काफ की आयात की तलावत करके बता दिया कि शहीद जिंदा होते हैं, देखो मेरा जिस्म करबला की गरम रेत पर पड़ा है और मेरा सर काट कर नो के नेज़ा पर बुलंद किया है, लेकिन इमाम आली मकाम ने नो के नेज़ा पर भी कुरान पढ़ के बता दिया कि शहीद ज़िंदा होते हैं और कुरान की उस आयत की तस्दीक कर दी कि जो मैंने शुरू में पढ़ी, वला तकूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं। ये हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है, कभी जुदा होने वाले नहीं हैं। हुसैन का सर कट गया लेकिन कुरान हुसैन से जुदा न हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, आज अरबाइन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत को 40 दिन हो चुके। आज फिर एक मर्तबा इमाम हुसैन की शहादत की चंद जब वो जा रहे थे शहीद होने के लिए, तो उस वक्त के जो चंद मसाइब हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इमाम हुसैन जब कुर्बानी दे चुके, अली अकबर के सीने में बर्छी लगी और अली अकबर के सीने से बर्छी का फल खींच चुके, अली असगर के गले पर तीर लगा, उस तीर को खींचकर और जो चंद कतरे खून के निकले उसको आसमान की तरफ फेंक कर अपनी मजलूमियत को सफ़ाए आलम पर तहरीर कर चुके और फरमाया, हव्वना अलैया मा नज़ल बी अन्नहु बिऐनिल्लाह, ए परवरदिगार ये मुसीबत भी मुझ पर आसान है इसलिए कि ये जो कुछ हो रहा है तेरे सामने हो रहा है। और फरमाया, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो हरम रसूल का दिफा करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी तलवार लिए हुए असा के सहारे खैमों से बरामद हुए। इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन उम्मे कुलसूम, इसको रोको, ये हुज्जत खुदा है, ये इस कारवां का सालार है और इसको रोको। खुदावंद आलम ने इस पर जहाद करबला का ये जहाद वाजिब नहीं किया, ये बीमार हैं। फरमाया, है मेरे बेटे,
तुझ पर बड़ा जहाद वाजिब है, तूने अपनी फुफियों को, बहनों को, माँओं को लेकर जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैदान में आए और चाहते हैं कि खैमे से बाहर निकलें, तो जैसा कि मक्तल की किताबों में दर्ज है कि जो ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैमे से बाहर आना चाहते हैं, बीबियाँ आपके गिर्द घेरा डाल लेती हैं। कोई बीबी आपके हाथों के बोसे लेती है, कोई आपके अबा को चूमती है, कोई बेटी आगे बढ़ती है, कभी कोई दूसरी बेटी आगे बढ़ती है। इमाम हुसैन चाहते हैं कि बाहर आएं खैमों से। तो उस वक्त जब आपने देखा, रावी कहता है कि इमाम हुसैन का वो पर्दा खैमों का 9 मरतबा उठा और 9 मरतबा घिरा। अमीर अनीस कहते हैं, शब्बीर यूं बरामद हुए खैमक दर से, जनाजा निकलता है जैसे किसी घर से। जब इमाम हुसैन चलने लगते हैं, एक मरतबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, महलन मखलन या आखी, ऐ मेरे भैया कुछ देर के लिए रुक जाओ, मैं माँ की वसीयत को पूरा कर लूँ। अज़ादारो, इमाम हुसैन रुके। जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने भाई के गले पर बोसे दिए और कहा कि मुझे माँ की वसीयत थी कि जब तेरा भाई हुसैन जब आखिरी वक्त में जाने लगे तो उस वक्त मेरी तरफ से इस गर्दन पर बोसे देना, हुसैन की गर्दन पर, कि जिस पर खंजर चलेगा। अजीज़ों, अब जो हुसैन आए तो देखा घोड़े पर सवार होने वाले हैं। तो पहले जब घोड़े पर सवार होते थे तो कभी हजरत अब्बास अलमदार आगे बढ़ते थे, कहीं अली अकबर आगे बढ़ते थे, कभी कासिम जैसे भतीजा आगे बढ़ता था। लेकिन देखा कि सब शहीद हो गए। नजरा शमालन यमीनन, एक मरतबा मौला हुसैन ने दाएं तरफ निगाह की, फिर बाएं तरफ निगाह की, तो अजीज़ों इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए।